जो दिवंगत सांसद हैं ई अहमद साहब, वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनको भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। हालांकि कार्रवाई शुरू हो गई, सीधा वहीं का रुख करते हैं। Honorable members, I have to inform the House about the sad demise of our colleague Sri E. Ahmed. Sri E. Ahmed was a sitting member representing the Mallapuram parliamentary constituency of Kerala. He was also a member of 10th to 15th Lok Sabhas. Sri Ahmed was Union Minister of State for External Affairs, Railways and Human Resource Development. Earlier, Sri Ahmed was a member of the Kerala Legislative Assembly for 5 terms from 1967 to 91 and served as Minister for Industry in the government of Kerala. Sri Ahmed was Chairman Committee on Absence of Members from the sittings of the House, Chairman Committee on Government Assurance and Chairman Joint Committee on Food Management in Parliament House Complex. He was also a member of various parliamentary committees during his long and illustrious parliamentary career. A widely travelled person, Sri Ahmed, leader of Indian delegations to various countries. Sri Ahmed passed away on 1st February 2017 in New Delhi at the age of 79. We deeply mourn the loss of our colleague, and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family. The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed. Om Shanti. Honorable members, 1 minute. 1 minute, please. I know. First, let me declare something. Then आप बोल सकते हैं. मैं नहीं मना कर रही हूँ. Honorable members, please. दूसरा भी नहीं, वो नहीं कर रही हूँ. मैं जो बोल रहे आपके मन में बात है वही I will also. मैं भी आप में से. Yeah. Honorable members, yes. आज मैं yes I am. Please. Honorable members, as you are aware that in the event of death of a sitting member, the House is adjourned for the day as a mark of respect after obituary reference to the passing away of the member is made in the House. I would have adjourned the House for the day, but today's sitting has been specifically fixed by the Honorable President for presentation of the Union Budget for the financial year 2017-18, which is a constitutional obligation. In view of this exceptional situation, the House may go ahead with the presentation of the Union Budget for 2017-18. However, the House would not sit tomorrow as a mark of respect to the deceased person. So now, Honorable Finance Minister, I Yes, please. खड़गे जी, अब इसके बाद आप कल की बात मैंने जब बोली है, आई एम सॉरी. Madam Speaker. Yes, खड़गे जी, ऐसा होता नहीं है. You called me, I met you, and I requested you. Yes. Today the House should be adjourned. Because E. Ahmad is a very senior most leader this House and also in Kerala House. Nearly 45 years he is there in the legislative affairs. And as a mark of respect, the House should be adjourned today. Budget can be presented tomorrow.
because why I am telling you, E. Ahmad was on his duty. I know. Yesterday, Please. he was in joint parliamentary session. He was present, and he collapsed there only. Please. And he was taken to hospital. Yes. And Please, after please. taking hospital, and taking Please, hospital. Kharge ji, now please No, 1 minute. stop there only. Taking hospital, they already declared dead. We are But in not a spite doctor. of that, I am not a doctor. in spite of that, Nobody is a doctor. it was Please. kept. No, nothing will go It on. was kept. I have given my ruling. और एक बात ऐसी है, हम कोई नहीं, इट इज ए डॉक्टर डिसीजन, आई एम सॉरी, और कल हम रिस्पेक्ट करेंगे, मैंने कहा है, ऑल ऑफ अस वी ऑल्सो रिस्पेक्ट हिम, नो डाउट. सो नाउ प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, यस प्लीज कोऑपरेट विथ मी, प्लीज कोऑपरेट, सभी को से बात करें, आई एम सॉरी. Nothing will go on record. I'm sorry. Only minister statement. Please, this is not correct. Please, this is not the way. Please. Minister. Please. Madam Speaker, Madam Speaker, on this auspicious day of Vasant Panchami, I rise to present a budget for 2017-18. Spring is a season of optimism. I extend my warm greetings to everybody on this occasion. Madam Speaker, I have already our government given was elected amidst Please. huge expectations of the people. The underlying theme of countless expectations was good governance. The expectation included burning issues like inflation and price rise, corruption in day-to-day transaction, and crony capitalism. There was also an expectation from a major change in the way the country's natural resources were allocated, processed, and deployed. In the last 2.5 years, it has been our mission to bring a transformative shift in the way our country is governed. We have moved, Madam, from a discretionary-based administration to a policy and system-based administration. From favoritism to transparency and objectivity in decision-making. From blanket and loose entitlements to targeted delivery, and from an informal to a formal economy. Inflation, which was in double digit, has been controlled. Sluggish growth has been replaced by high growth, and a massive war against black money has been launched. We have worked tirelessly on all these fronts and feel encouraged by the unstinted support to the people by our initiatives. The government is now seen as a trusted custodian of public money. I take this opportunity to express our gratitude to the people of India for their strong support. We shall continue to undertake many more measures to ensure that the fruits of growth reach the farmers, the workers, the poor, the scheduled caste and the scheduled tribes, women and other vulnerable sections of our society. Our focus will be on energizing our youth to reap the benefits of growth and employment. Madam Speaker, I am presenting this budget when the world economy faces considerable uncertainty in the aftermath of the major economic and political developments during the last 1 year. Nevertheless, the International Monetary Fund estimates that the world GDP will grow by 3.1% in 2016 and 3. उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों में विकास की दर 1.6% से 1.9% के बीच और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में 4.1% से 4.5% के बीच होने की आशा है।
मौजूदा संकेतकों के अनुसार कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में वृहत आर्थिक नीति के अधिक विस्तृत रूप में होने की आशा है। वर्ष 2016 में तुलनात्मक रूप से निम्न प्रदर्शन के बाद अनेक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में विकास की गति के वर्ष 2017 में फिर से पटरी पर आ जाने की आशा है। ये सभी बातें आगामी वर्ष के लिए भरपूर संभावनाएं प्रस्तुत करने वाले सकारात्मक संकेत हैं। तथापि उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। पहली, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा की गई मौजूदा आर्थिक नीतिगत व्यवस्था, जिसमें इसने वर्ष 2017 में नीति दरों में 1 से अधिक बार वृद्धि करने की मंशा जाहिर की है कि उसके कारण उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में पूंजी के अंतर्वाह में कमी आएगी और पूंजी के देश से बाहर जाने की गति तेज होगी। दूसरी, वस्तुओं के मूल्य, विशेषकर कच्चे तेल के मूल्यों में अनिश्चितता बनी हुई है और इसके कारण उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों की राजकोषीय स्थिति प्रभावित हुई है। तथापि उम्मीद यह है कि इसमें कोई वृद्धि होती है तो शैल गैस और तेल उत्पादकों की तत्काल प्रतिक्रिया के कारण तेल के मूल्य प्रभावित होंगे। इससे कच्चे तेल और पेट्रोलियम के मूल्यों में कमी आएगी। तीसरी, विश्व के अनेक हिस्सों में संरक्षणवाद के लिए दबाव में निरंतर वृद्धि होने के कारण वस्तुएं, सेवाएं और लोगों के वैश्वीकरण से दूर जाने की घटनाओं में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस घटनाक्रमों के कारण भारत सहित उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले अनेक देशों से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। These developments have the potential to affect the exports from a number of emerging इन सभी घटनाओं के बीच भारत विश्व के आर्थिक परिदृश्य में एक चमकते हुए सितारे के समान खड़ा है। भारत की वृहत आर्थिक स्थिरता इसकी आर्थिक सफलता पर का आधार बना हुई है। सीपीआई मुद्रास्फीति जुलाई 2016 में 6% से घटकर दिसंबर 2016 में 3.4% रह गई है। इसके भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अधिदेशित 2% से 6% की रेंज के भीतर बने रहने की आशा है। अनुकूल मूल्य स्थितियां विवेक सम्मत वृहत आर्थिक प्रबंधन को दर्शाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन, विशेषकर दालों के उत्पादन में तेजी आई है। भारत का चालू घाटा पिछले वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% से घटकर वर्ष 2016-17 के पूर्वार्ध में सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% रह गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले वर्ष की पहली छमाही के 1.7 करोड़ से बढ़कर 2016 के पूर्वार्ध में 1,45,000 करोड़ हो गया है। इसमें वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह में 5% की कमी आने के बावजूद हमारे देश में 36% की वृद्धि दिखाई देती है। 20 जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 361 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो लगभग 12 महीने तक आयात के लिए एक आसान कवर निरूपित करता है। सरकार अर्थव्यवस्था की सार्वजनिक निवेश संबंधी जरूरतों से समझौता किए बिना राजकोषीय समेकन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। विदेशी मोर्चे पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने FCNR जमा राशियों की निकासी, अमेरिकी चुनावों के कारण बनी अस्थिरता की स्थिति और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि किए जाने सहित अनेक आघातों को सफलतापूर्वक सहन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाए गए एक पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2017 में भारत की एक तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की आशा है। पिछले 2 वर्षों के दौरान जारी अनेक वैश्विक रिपोर्टें मूल्यांकनों से ज्ञात होता है कि भारत ने अपनी नीतियां, पद्धतियां एवं आर्थिक दिशा में उल्लेखनीय सुधार किया है। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2016, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2015-16, 2016-17 की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और अनेक अन्य रिपोर्टों से इस बात का पता चलता है कि भारत विश्व में 6ठा सबसे बड़ा विनिर्माणकारी देश बन गया है। पिछले 9वें स्थान पर था, अब हमारे देश को वैश्विक विकास के प्रेरक के रूप में देखे जाने लगा है। पिछले 1 वर्ष के दौरान हमारे देश में अनेक ऐतिहासिक, प्रभावपूर्ण आर्थिक सुधार और नीतिगत निर्णय किए गए हैं। वास्तव में भारत रूपांतरणकारी सुधार कार्य को करने वाले बहुत थोड़े देशों के समूह में शामिल था। 2 अत्यधिक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल अर्थात GST के लिए संविधान संशोधन बिल को पारित करना और संसद में लागू किए जाने की दिशा में कार्य करना, उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण, विकास की गति में तेजी लाना, for its implementation, प्रतिस्पर्धा, demonetization of the high denomination bank notes, अप्रत्यक्ष कर को सरल बनाना, इस प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के संदर्भ में हमारी अर्थव्यवस्था के लिए GST के लाभों पर संसद के दोनों सदनों में व्यापक विचार विमर्श किया जा चुका है। मैं संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किए जाने के लिए दोनों सदनों के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। मैं संबंधित सभी समस्याओं को GST काउंसिल में समाधान कराने के लिए राज्य सरकारों को भी धन्यवाद देता हूँ। उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों
का विमुद्रीकरण गत 2 वर्षों के दौरान हमारी सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों में शामिल है। यह एक साहसिक एवं निर्णायक उपाय है। अनेक दशकों से कई लोगों के लिए कर वंचना उनकी जीवन शैली में शामिल हो गई है। इसके कारण जनता के व्यापक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके फलस्वरूप कर वंचना करने वाले लोगों में अनुचित संपन्नता बढ़ी है। निर्धन एवं सुविधाहीन लोगों के लिए परेशानियां पैदा हुई। इसके कारण एक समानांतर अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ है जो किसी भी समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाले समाज के लिए अस्वीकार्य है। विमुद्रीकरण द्वारा एक नए क्षितिज का निर्माण हुआ है जिससे सकल घरेलू उत्पाद के विकास की दर तुलनात्मक रूप से अधिक होगी, अर्थव्यवस्था अधिक स्वच्छ वास्तविक होगी। यह कार्य भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली करेंसी, आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा किए गए संकल्प का एक हिस्सा है। अन्य सभी सुधारों के समान ही स्पष्ट है कि ये उपाय भी स्थापित व्यवस्था के लिए कष्टकारी सिद्ध होगा क्योंकि इसमें वर्षों से चली आ रही स्थिति में बदलाव लाने पर विचार किया गया है। यदि नई मुद्रा को बाजार में लाने की अवधि के दौरान मुद्रा की कमी के कारण आर्थिक क्रियाकलापों में कोई व्यवधान आया तो उम्मीद है कि इसके कारण अर्थव्यवस्था पर केवल एक क्षणिक प्रभाव पड़ेगा। A right cause never fails. मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कही गई यह बात याद आती है कि सही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य कभी भी विफल नहीं होता। Generate long-term benefits in terms of reduced corruption, greater digitization. विमुद्रीकरण से संसाधन के कर वंचकों से सरकार को अंतरित होने में सहायता मिली है तथा सरकार इन संसाधनों का प्रयोग निर्धनों और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कर सकती है। बैंकों की कम ब्याज दरों पर ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होना तथा समाज के सभी तबकों द्वारा काफी अधिक संख्या में डिजिटाइजेशन को अपनाना इसका साक्षी है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि विमुद्रीकरण तथा जीएसटी जो हमारी सरकार को तीसरी रूपांतरकारी उपलब्धि अर्थात जीएम परिकल्पना पर आधारित है का हमारी अर्थव्यवस्था तथा हमारे लोगों के जीवन पर युगांतरकारी प्रभाव पड़ेगा। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, हम वृद्धि एवं विकास के मार्ग के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। द पेस ऑफ पुनः मौद्रीकरण ने गति पकड़ ली है और जल्दी ही यह आसान स्तर पर आ जाएगा। विमुद्रीकरण के प्रभाव आगामी वर्ष तक नहीं रह जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी 2016 के संबंध में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कमी आने की घोषणा करते हुए 2017 और 18 में सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः 7.2% और 7.7% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। तथापि विश्व बैंक इस संबंध में अधिक आशावादी है और उसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 2016-17 में 7%, वर्ष 17-18 में 7.6 और 18-19 में 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। हमारी अर्थव्यवस्था में यह वृद्धि हमारी नीतिगत और आर्थिक सुधारों को जारी रखने के संबंध में हमारी प्रतिबद्धता, अवसंरचना सुविधाओं तथा विकास परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि तथा विश्व अर्थव्यवस्था में तेजी से आने के संदर्भ में निर्यात में वृद्धि के आधार पर अनुमानित की गई है। विमुद्रीकरण के कारण हमारी बैंकिंग व्यवस्था में काफी अधिक नकदी जमा हो गई है जिससे इन बैंकों द्वारा उधार पर ब्याज में कमी आएगी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2016 को दिए गए भाषण में इस चरण पर हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की गई थी, जैसे कि निर्धनों के लिए आवास, किसानों को राहत, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देना, गर्भवती महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करना एवं मुद्रा योजना के तहत दलितों, जनजातीय समुदायों के लोगों और पिछड़े वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देना। इस बजट को तैयार करते समय मेरा समग्र विचार ग्रामीण क्षेत्रों, अवसंरचना तथा गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अधिक व्यय करने तथा ऐसा करते हुए राजकोषीय विवेक के सर्वोत्तम मानकों को बनाए रखना रहा है। मैंने आर्थिक सुधारों को जारी रखने, अधिक मात्रा में निवेश को बढ़ावा देने और विकास की गति को त्वरित करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा है।
पिछला एक वर्ष अन्य प्रमुख सुधारों का साक्षी रहा है, जैसे कि शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता का अधिनियमन, मुद्रास्फीति संबंधी लक्ष्य निर्धारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन, वित्तीय सब्सिडी तथा लाभ के संवितरण हेतु आधार विधेयक का अधिनियमन, FDI नीति में उल्लेखनीय सुधार, वस्त्र सेक्टर के लिए रोजगार सृजन संबंधी पैकेज, ऐसे अन्य उपाय हम निर्धनों तथा सुविधाहीन वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जारी रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 के बजट में 3 प्रमुख सुधारों का उल्लेख किया जा रहा है। पहला है, बजट प्रस्तुत करने की तिथि को अग्रिम करके इसे 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है, ताकि संसद लेखा अनुदान को पारित करने की प्रक्रिया से बच सके तथा मौजूदा वित्त वर्ष समाप्त होने से पूर्व ही वित्त वर्ष 17-18 के लिए एक विनियोग विधेयक पारित कर दें। इससे मंत्रालय तथा विभाग आगामी वित्त वर्ष के आरंभ से होने वाली योजनाओं सहित सभी योजनाओं तथा परियोजनाओं पर कार्य कर सकेंगे। वे मानसून शुरू होने से पहले उपलब्ध काम के समय का पूरी तरह उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, रेल बजट का आम बजट के साथ विलय करना एक ऐतिहासिक कदम है। हमने 1924 से चली आ रही इस औपनिवेशिक प्रथा को बंद कर दिया है। इस निर्णय से रेलवे सरकार की राजकोषीय नीति के केंद्र में आ जाएगा और इससे रेलवे, राजमार्गों तथा अंतर्देशीय जल मार्गों के बीच मल्टी मॉडल परिवहन योजना तैयार की जाएगी।